ओम शांति। आज 22 जनवरी 2006 में बाबा का अनमोल महावाक्य सुनेंगे। इस महावाक्य में बाबा आज के बोलेছেন, বাচ্চারা তোমাদের যোগের महत्व অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট দিতে হবে। এই যোগের দ্বারাই তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারবে। সেই মালিক হওয়ার নেশা এবং উদ্দীপনা তোমাদের মধ্যেই থাকা উচিত। আর সাথে সাথে তোমাদের ক্যারেক্টার, লৌকিক স্কুল কলেজেও ক্যারেক্টারের উপর ধ্যান দেওয়া হয়, পড়াশোনার উপর ধ্যান দেওয়া হয়। এখানে যেমন পড়াশোনা তেমন ক্যারেক্টারের উপর তোমার অনেক ধ্যান দিতে হবে। উচ্চ প্রাপ্তি করার জন্য আত্মাকে পাবন করতেই হবে, এছাড়া দ্বিতীয় কোনো আর অপশন নেই। বাবা বলেছেন, শ্রীমতে চলে বুদ্ধিকে অত্যন্ত শক্তিশালী বা সালিম করতে হবে। সালিম শব্দটা বলেছেন যে শ্রীমতে চলেই তা সম্ভব, কখনো অবজ্ঞা করা চলবে না। আর ক্রোধে আসলে চেহারাটা অনেকটা লাল তামার মতো হয়ে যায়, তখন মুখ দিয়ে বোম বেরোয়, অপশব্দ বেরোয়। তোমরা যারা বিশ্বের মালিক হতে চলেছ, তো তোমাদের এই মুখ দিয়ে অপশব্দ বা বোম বের করা ঠিক হবে না। দিল থেকে বাবার মহিমা করো, যেমন ব্রহ্মা বাবা করতেন ঠিক তেমনি বাবার মহিমা করো। দুনিয়াতে কোনো রকম মানুষের মহিমা করা, তাতে কোনো রকম প্রাপ্তি নেই। বাবা আরও বলেছেন, পুরানো দুনিয়া, তোমার চোখের সামনে পুরানো দুনিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হতে চলেছে। সেই পুরানো দুনিয়ার প্রতি কোনো রকম আসক্তি নয়, কোনো রকম মোহ নয়, কোনো রকম মোহ নয়, সহজ নির্মোহী ভাব নিয়ে আমাদের চলতে হবে। আর তৃতীয় বাবা পয়েন্ট বলেছেন, রোজ আমাদের উন্নতির জন্য চার্ট রাখতে হবে। ভালো করে পড়াশোনা করা, মেহনত করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করা। তো এই পয়েন্ট আজকের মুখ্য পয়েন্ট। যোগবলের মহত্ব, উচ্চ পদ প্রাপ্তির জন্য আত্মাকে পাবন বানাতে হবে, বিশ্বের মালিকপনের নেশা থাকতে হবে, শ্রীমতে চলে বুদ্ধিকে সালিম করতে হবে, কোনো অবজ্ঞা করা চলবে না। না ফরমান বরদার, তো এই যজ্ঞতে কোনো রকম তার স্থান নেই। সেজন্য ফরমান বরদার হতে হবে। দুনিয়ার থেকে আসক্তি আমাদের একেবারে জিরোতে নিয়ে আসতে হবে। শুদ্ধ মোহ এক বাবার প্রতি রাখতে হবে। আর চার্ট রাখা একান্ত জরুরি, কারণ চার্ট রাখলে পরেই আত্মার উন্নতি সম্ভব। আর চার্টে যদি কখনো ভুল থাকে, বাবাকে সত্য সত্য বলে দেওয়া। তার জন্য কাছারি, আগেকার সময়ে কাছারি করা হতো, সেই কাছারি নিজের কাছারি নিজেই सेट करा। तो आज हम सुनेंगे आज का वाणी। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पराई और दैवी कैरेक्टर का, पराई और दैवी कैरेक्टर का रजिस्टर रखो। रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई।
কারণ নিজেকে মিয়া মৃত্যু না মনে করে একেবারে সম্পূর্ণ সমর্পণ ভাব, সারেন্ডার ভাব, কোনো রকম ভুল করিনি তো। কারণ এটা তারই সম্ভব যে নাকি নম্র স্বভাবের হয় এবং যে নাকি নিজেকে ফ্লেক্সিবল করে নেয়, যে না আমি যেটা করেছি ঠিকই করেছি। না, বাবার শ্রীমতে চলে, পড়াই আর রেজিস্টার ঠিক রাখতে গেলে নিজের ফ্লেক্সিবিলিটি চাই। আজকের মুরলী থেকে প্রশ্ন, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? उत्तर, 1 नंबर, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो। तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। आज्ञा को ना मानने वाले राजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। नंबर 2, कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं। छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो, तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। तो शतजुगेर तिलक এই তিলক নয় যে নিজেই চন্দনকে ঘষলাম নিজেই এঁকে নিলাম, এই তিলক নয়। বাবা বলছে কি অমিট তিলক। এই তিলক আজ্ঞাকারী থাকলে পরেই এই রাজাইয়ের টিকা মিলতে পারে। এক হচ্ছে আজ্ঞাকারী, দ্বিতীয়ত যারা আজ্ঞাকারী হবে না তারা কখনো এই তিলক প্রাপ্ত করতে পারবে না। আর কোনো প্রকার পুরুষার্থের মধ্যে কোনো প্রকার যদি বিমারি থাকে, স্থূল হোক সূক্ষ্ম হোক, বাবা সার্জন, বাবাকে খোলাখুলি বলা, বাবা এই সমস্যার কারণে আমি এগিয়ে যেতে পারছি না। আর যদি লুকিয়ে পাপ করা হয় তাহলে বাবা বলে কি কখনো তুমি তিলক প্রাপ্ত করতে পারবে না। আর যেমন বাবা मीठा प्यार का सागर, ऐसा सबका साथ ऐसा मीठा व्यवहार करो।
तो दैवी कैरेक्टर रजिस्टर बनाने के लिए हमें चेक करना है, फ्लेक्सिबल बनना है। राजाई का तिलक प्राप्त करने के लिए ये क्वालिटी हमें जरूर धारण करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, पराई माना क्या है? पराई माना जो पराई हम पढ़ रहे हैं, ये पराई को बाबा एक शब्दों में क्या कहेंगे? हाँ, सोर्स ऑफ इनकम। और पराई माना नॉलेज। और हाँ, गुप्त, हाँ, ऊंच पद पाना, निश्चय मालिक बना। पराई माना समझ। समझ এটা কোনো মুখস্থ করা নয়, এটা কোনো দেখা দেখি নয়, এটা হলো ভেতর থেকেই অন্তরাত্মা সায় দেবে। হ্যাঁ, তুমি সালিম, তুমি বালিক, তোমার পুরুষার্থ হচ্ছে, তুমি বুঝতে পারছো। पराई माना समझ। तुम बच्चे समझते हो ना, ये पराई बहुत सहज और बहुत ऊंची है और बहुत ऊंच पद देने वाली है। इसलिए बिना समझ से पढ़ेंगे तो इतना प्राप्ति तो नहीं होगा। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ये पढ़ाई हम विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने वालों को बहुत खुशी होना चाहिए ना, जैसे लॉटरी मिला है। दुनिया में कोई कोई लॉटरी मिलते ही पागल हो जाता है। आज भी पॉइंट में बाबा ने कहा, कोई कोई इस ज्ञान में चलते हुए तो संशय में आ जाता है, क्या मैं देवी देवता बन पाऊंगा, स्वर्ग दुनिया में जा पाऊंगा? तो ऐसा संशय भी नहीं आना चाहिए, पागलपन भी नहीं होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। कितनी ऊंच पढ़ाई है, कितनी ऊंच पढ़ाई है। आपने आपको ऐसा नशा क्रिएट करना है। तो ये वही गीता एपिसोड भी है। गीता एपिसोड तो संगम युग भी है, गीता एपिसोड है, संगम युग है। भगवान आया हम बच्चों का सामने, तुम बच्चे अब जाग रहे हो, बाकी दुनिया में सब कुंभकर्ण का निद्रा में सोए पड़े हैं। गायन भी है ना, माया का नींद में सोए पड़े हैं। माया का नींद, ये कोई तो नींद नहीं। तो कितना भी धक्का मारो, कान में पानी डालो तो बह जाएंगे। तुमको बाबा ने आकर जगाया है, सिर्फ एक बात पर समझाते हैं। कौन सा बात? मीठे बच्चे, याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करो। एक ही बात, एक ही लाइन पर हमें टिकना है। जैसे कल्प पहले किया था, यह स्मृति बाप दिलाते हैं, बच्चे भी समझते हैं। तो अभी हमारा स्मृति आया, कोई जन्म का पहले, बाबा ने कितना सालों पहले, तो बाबा कहते हैं तो हमारा बुद्धि इतना बुद्धि शक्तिशाली होता है। तो कोनो समय बुद्धिर मध्य की थाके, तो मर्ज थाके, चापा पड़े थाके, और समय मतो ওই নিচের পার্ট ওপরে চলে আসে। এই জন্য বাবা বলছে कि तो अभी तुम्हारा स्मृति आई है ना, अर्थात इमर्ज हुआ है, আমরাই সেই आत्मा। कल्प कल्प हम इस युग बल से विश्व का मालिक बनते हैं और भी दैवी गुण धारण करते हैं। कैसे कैरेक्टर सुधारना, कैसे आचरण को हमें परिवर्तन करना, बोल जैसे बाबा जैसा। तो मीठा का सागर है, ऐसा मास्टर मीठा का सागर हमें बनना चाहिए। योग पर ही पूरा ध्यान देना है। इस योग बल से तुम बच्चे में ऑटोमेटिकली दैवी गुण आ जाएंगे। बराबर ये इम्तिहान है ही मनुष्य से देवता बनने का, ये इम्तिहान बाबा कहते हैं। तो रोज़ तुम्हारा पढ़ाई होता है और रोज़ फील्ड में जाकर के तुम्हें परीक्षा देना पड़ता है। कोई आएंगे आँख लाल करेंगे, कोई आएंगे अंगुली उठाएंगे, तो उल्टा बात करेंगे, तुम्हें सहन करना चाहिए। अष्टशक्ति भी बाबा ने दिया है, गुण भी दिया है, और बाबा ने
आँखों पर बच्चों को रखते हैं। और हमें भी नशा रखना चाहिए देवता बनने के लिए। तो कोई भी हमें सताएंगे, लेकिन हमें भी उत्तेजित नहीं होना है। तुम यहाँ आए ही हो योगबल से मनुष्यों से देवता बनने के लिए, और ये भी जानते हो कि हमारी योगबल से सारा विश्व पवित्र होना है। तो आत्मा नहीं तो आत्मा का सब तत्व, 5 तत्वों को भी हमें पवित्र बनाने का वाइब्रेशन देना है। तो पवित्र था दुनिया, अब अपवित्र बना है। सारे चक्रों के राज को तुम बच्चों ने तो समझा है, और दिल में भी है, दिल में भी है। बाबा कहते हैं सारा चक्र तुम्हारा 1 सेकंड में तुम घुमा सकते हो, दिल में भी है। भल कोई नया हो तो भी यह बात बहुत सहज समझने की है। बाबा का ज्ञान भी गोल गोल है, तो नया जो आए इसका भी कोई कठिन नहीं लगेगा, और पुराना को रिवाइज होता जाएगा। तो तुम देवता पूज्य थे, फिर पुजारी तम प्रधान बने, और कोई ऐसा बतला ना सके। दुनिया में कोई चक्कर लगाओ तो ऐसा कोई तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट नहीं दे सकेंगे, ऐसे कोई तुम्हें मोटिवेट कर नहीं सकेंगे। बाप क्लियर बताते हैं बच्चे, तो जो तुम करके आए हो वो था भक्ति, वो था भक्ति। अभी तुम ज्ञान सुन रहे हो, तो भक्ति पास्ट हो गई ना, तो पास्ट की बात को चितवो नहीं। एमनो नय भक्ति केन करलाम तार जन्य कोनो आफसोस नहीं, कारण भक्ति ना करले परेई तो सेकेंड पार्ट जे ज्ञान कखनो प्राप्त है ना। भक्तिर फल होच्छे ज्ञान। तो वो तो गिरने की बात है। भक्ति माना भक्ति करते रहेंगे। तो भक्ति को ना छोड़ने से तो ज्ञान की कला, ज्ञान की सीढ़ी नहीं मिलेगा। तो ये भी हमें निश्चित होना चाहिए। और भक्ति को पकड़ के रखेंगे तो गिरावट तो होगा ही होगा। ये भी बाबा ने क्लियर रीति बताया। बाप अब चढ़ने की बात तुम्हें सुना रहा है कैसे तुम ऊपर में चढ़ो। बच्चे भी जानते हैं हमको दैवी गुण धारण करने हैं, जरूर बातों में, चलन में, आचरण में। तो रोज चार्ट लिखना चाहिए। इसीलिए विधि विभाग बताते हैं हम कितना समय याद में रहते हैं। सारा दिन बैठ कर के योग किया और कर्मयोगी होकर के कर्म किया, तो सारा डायरी में नोट करो। हमारा से कोई भूल हुई क्या? भूल की भारी चोट लगती है। ये भी ज्ञान मार्ग में बाबा कहते हैं ये उच्च मार्ग है, उच्च चढ़ाई का बात है। उस पढ़ाई में भी स्कूल कॉलेज में कैरेक्टर देखे जाते हैं, इसमें भी कैरेक्टर देखा जाता है। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहते हैं ना, तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, दैवी गुण धारण करो। तो उसमें भी रजिस्टर रखते हैं। लौकिक पढ़ाई का रजिस्टर रखते हैं और कैरेक्टर का रजिस्टर रखते हैं। जो बदतमीज करने वाला स्टूडेंट को अच्छा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ भी बच्चों को दैवी कैरेक्टर बनाना है। भूल ना हो, ये संभाल करनी है। बाबा ने कहा तो संभाल करनी है, भूल ना हो। बार बार अपने को पहारा रखना है। संभाल करना माना पहारा रखना है, अटेंशन का पहारा रखना है। तो मेरी से कोई भूल तो नहीं हुई, इसीलिए कचहरी भी करते रहो। और कोई स्कूल आदि में कचहरी नहीं होता। पढ़ाई तो पढ़ाई है, होमवर्क दे दिया, कोई करते हैं नहीं करते हैं। तो यह बाबा ने कहा तो होमवर्क जो बाबा ने देता है, इसीलिए रात में बैठ कर के कचहरी करो। अपने दिल से पूछना है। बाबा ने समझाया है माया के कारण कुछ ना कुछ अवज्ञाएं होती रहती है, इसीलिए कचहरी करना। जब तो साकार बाबा मम्मा थी तो कचहरी में बैठाते थे। माने सकल बच्चादेरके गोल गोल करे निये बसतो। प्रत्येकके बला हतो तुमी कर्म इंद्रिय द्वारा की करेছো। तो सकले सत्यई बोलतो, कारण माता पिता तादेर सामने मिथ्या बोला माने कि निजेर जीवने अनेक पिछिए जावा। एजন্য बाबा कहते हैं
शुरू में भी कचहरी होती थी, बच्चे सच ही बतलाते थे, बाप समझाते रहते हैं। अगर सच ना बताया तो ये भूल को वृद्धि पाती रहेगी, आदत पड़ जाएगा। कोई भी तो हमारा खाने में कहो, पहनने में कहो, चलन में कहो, अगर कोई भूल को हम रोक ना दे तो ये भूल वृद्धि पाते जाएंगे। ये दुनिया का नियम है। उल्टा और भूल का दंड मिल जाता है। भूल ना बताने से फिर नाफरमान बरदार का टीका लग जाता है। वो आत्मा आगे नहीं बढ़ेगा, वो आत्मा सतयुग का लायक नहीं बन जाएगा। फिर राजाई का तिलक मिल भी नहीं सके। आज्ञा नहीं मानते तो बेवफादार बनते हैं तो राजाई का पद नहीं पाते हैं। सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। सर्जन से अगर बीमारी छिपाएंगे तो पद भी बहुत कम हो जाएगा। लौकिक रीति में भी कहते हैं, सर्जन का साथ, वकील का साथ सच बोलो, नहीं तो बीमार ठीक नहीं होगा, नहीं तो केस में हार जाएंगे। सर्जन को बताने से कोई मार तो नहीं पड़ते हैं। बाबा ये भी बात बताया, इतना ऊंचा सर्जन है, बाबा से सब बताएंगे। बाबा ने ये हमारा भूल हो गया और नहीं करूँगा, तो बाबा तुम्हें मारेगा नहीं, क्या करेगा? तो बाबा कहते हैं, बाप सिर्फ कहेंगे सावधान सावधान। तो यही छोटी बात बाबा कह करके बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। तो फिर अगर ऐसी भूल करेंगे तो नुकसान को पाएंगे। ऐसा नहीं, बाबा कितना प्यार से हमें समझाते हैं। बाबा का सावधान माना सावधान। लौकिक में भी देखो, लौकिक में जो मिलिट्री रहते हैं तो मिलिट्री का कमांड मना कमांड ही है। इसमें कोई आर्गू नहीं करना है। राइट टर्न के लिए कहा, राइट ही करेंगे। ऐसा नहीं है पूछेंगे राइट क्यों। तो उतना अटेंशन रहता है, उतना डिसिप्लिन रहता है। और तो इसीलिए तो बाबा भी कहते हैं, तो तुम अगर बाबा का सावधानी नहीं मानोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो आए ही तो तुम पढ़ने के लिए, उच्च प्राप्त करने के लिए पद बहुत कम हो जाएगा। तो वहाँ तो नेचुरल दैवी चलन होगी। सत्ययुग में कैसे होगा? सत्ययुग में किसी को डांटना नहीं पड़ेगा। तुम ऐसे बोलो, मीठा से बोलो, धीरे चलो, ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा। ऑटोमेटिक यहाँ से छान कर बाबा तो सिलेक्टेड, यहाँ तो इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है। तो बाबा सिलेक्टेड बच्चों को सत्ययुग में ले जाएंगे, अपने साथ ले जाएंगे, घर भेजेंगे परम धाम। ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है। तो यहाँ पुरुषार्थ करना है, यहाँ पुरुषार्थ करेंगे, सत्ययुग में ऑटोमेटिक हमारा नेचुरल दैवी चलन होगा। घड़ी घड़ी फेल नहीं होना है। इसीलिए बाबा ने यह शब्द नहीं दिया, घड़ी घड़ी फेल, घड़ी घड़ी फेल, घड़ी घड़ी स्लिप अप टांग, घड़ी घड़ी दृष्टि का हमारा तो भूल होना, कानों से भूल होना, तो ये घड़ी घड़ी फेल नहीं होना। कहते हैं ना बच्चे, जास्ती भूल ना करो। भूलेर तो एक लिमिटेशन थका चाहिए, जास्ती भूल ना करो। तो बाप बहुत प्यार का सागर है, प्यार से समझाते हैं। तो बच्चों को भी बनना है प्यार का सागर। ऐसा प्यार दुनिया वाले देखते रहे, सुनते रहे, अरे ओहो उनको पढ़ाने वाला कौन है। ऐसा लोगों को ऐसा फीलिंग हो, जथा बाप तथा बच्चे, जथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा तो राजा है नहीं, तुम जानते हो। बाबा हमको आप समान बनाते हैं। दुनिया में गुरु लोग क्या बनाते हैं? शिष्य बनाते हैं। बाबा शिष्य थोड़ी ही बनाते हैं, अपना बच्चा बनाते हैं, आप समान बनाते हैं। तो बाबा की जो महिमा करते हैं वो तुम्हारी भी होनी चाहिए। बाबा को तो लोग देखबे ना, आगामी दिने देखबे आमादेरके। तो आमादेर देखेई आमादेर साइनबोर्डेर मध्येई बाबाके अनुभव करबे आमादेर गुणेर द्वारा। इम्पॉसिबल नहीं है। तो बाप समान बनना है। माया बड़ी प्रबल है, तुमको रजिस्टर रखने नहीं देता माया। सीरियस होना है
तो माया तुम्हें सुला देती है, माया तुम्हें अटक देती है। माया के तो फाद में तो पूरे फंसे हुए हो, माया के जेल से तुम निकल सकते हो। थोड़ा हिम्मत करो, सच तुम बताते नहीं हो तो बाप कहते हैं एक्यूरेट याद का चार्ट रखो, एक्यूरेट याद। सुबह को उठ बाबा को याद करो, बाबा की महिमा करो। कैसे करेंगे ये भी बाबा ने बताया, बाबा का साथ बात कैसे करेंगे। बाबा तो आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो तो हम आपकी महिमा करते हैं, आपको थैंक्स देते हैं, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। हाँ, बाबा तो कोई भूखा नहीं है ना, ये बाबा को देना है, बाबा को पैसा कम देंगे तो बाबा प्यार कम करेंगे, ऐसा नहीं है। तो भक्ति मार्ग में कितना महिमा गाते, उनको तो कुछ पता भी नहीं, देवताओं की महिमा है नहीं, तो महिमा है तुम ब्राह्मणों की। अर्थात बाबा क्लियर बता दिया देवताদের কোনো রকম সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি নেই। সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি যদি থাকে এই समय हम ब्राह्मण बच्चों का खुद को परिवर्तन करना, दुनिया को परिवर्तन करना, बाबा का मैसेज देना। भक्ति मार्ग में कितने महिमा गाते हैं, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का महिमा है। सबको सद्गति देने वाला भी एक बाप है, तो वो है, वो क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सर्विस भी करते हैं और बच्चों को समझाते भी हैं। प्रैक्टिकल में कहते हैं तो वो तो सिर्फ भगवानों बच्चों सुनते रहते हैं, तो शास्त्रों से दुनिया वाले भक्ति करते हैं, तो भगवान बच्चों कहते हैं कृष्ण का नाम डाल दिया, तो बाबा कहते हैं शास्त्रों से सुनते रहते हैं और गीता पढ़ते आते हैं, तो मिलता क्या है। बाबा ने बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने रखा। गीता पढ़ते आया, गीता पढ़ के तो कारोबार में गया, कोई अपना ऑफिस में गया, तो गीता पढ़ के बीच में जितना पढ़ाई हुआ इसमें मयूर पुच्छो रख देंगे, और कोई गीता का कोई श्लोक हो, कोई उपदेश हो, तो समझेंगे ये तो अर्जुन के लिए, हम थोड़ी ही अर्जुन है। तो इसीलिए बाबा ने कहा गीता तो तुम पढ़ते आए हो, तो मिला क्या तुम्हें। तो कितना प्रेम से बाबा बैठ पढ़ाते हैं, किसी को बाबा निंदा ग्लानि नहीं करते, लेकिन बच्चों का उन्नति के लिए बाबा ने क्लियर बता देते हैं, कुछ हाथ में नहीं रखते हैं, तो भक्ति करते हैं, पता नहीं पड़ता इनसे क्या होगा। तो ये नहीं जानते कि हम नीचे ही उतर रहे हैं। भक्ति करছি किंतु नीचेर दिके जे जाচ্ছি সেই तो भावना की ओर থাকে ना, दिन प्रतिदिन तम प्रधान बनती ही है, ड्रामा में नोंद ही ऐसा है। इस सीरी का राज सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। हमारे जो उत्थान और पतन साप लूडोर खेला शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, तो यो भी इनसे समझकर फिर तो वो समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा का अनुभव भी ब्रह्मा बाबा एक्यूरेट मानते हैं शिव बाबा का, तो मान करके अपने बच्चों को उन्नति के लिए बाबा शेयर करते हैं। तो बच्चे मैंने ऐसा किया, तो इसीलिए बाबा ने कहा तो याद करो शिव बाबा को और कर्मों को देखो ब्रह्मा को। तो इसीलिए तो मूल बड़ा टीचर, बड़ा सर्जन तो एक शिव बाबा है, उनको ही याद करना है। ऐसे नहीं कहते तो ब्रह्मणि को याद करो, बाबा कहते ब्रह्मा को याद नहीं करो, ब्रह्मणि तो बहुत दूर का बात है। तो याद तो एक की रखनी है, कभी भी किसी का साथ मोह नहीं रखना है। मोह ये ब्राह्मण जीवन में आकर के भी तो कोई कोई ऐसा मोह में संसार में किसी मित्र संबंधियों का साथ ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ परिवार में आकर के मोह ज़्यादा रखते हैं। बाबा ने कहा कोई देहदारी से मोह नहीं रखना है। एक बाप से ही शिक्षा मिलती है, निर्मोही भी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, मेहनत चाहिए। सारी पुराने दुनिया से वैराग्य, 3 बात बाबा ने कहा, सारा पुराना दुनिया से वैराग्य, तो मेहनत से पुरुषार्थ करना, निर्मोह। तो यो तो दुनिया क्यों निर्मोही बनना, ये दुनिया तो अभी खत्म हुई की हुई, प्रैक्टिकल में भी हम देख रहे हैं। तो इसमें
लाभ व आसक्ति कुछ भी नहीं है, तो कितने बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, तो उन्हों को ये भी पता नहीं कि ये पुराने दुनिया बाकी कितना समय है, कितना प्लान बनाकर, तो सरकार भी कितना प्लान बनाते हैं, मनुष्य भी कितना प्लान बनाते हैं, तो आँखों में कितना कलरफुल ग्लास है, तो सपनों देखते ही रहते हैं। तुम बच्चे अब जागे हो, औरों को भी जगाते हो। थोड़ा समय है, जितना नीड है तो इतना ही, बाबा ने कहा लोगों को नीड से ग्रीड ज़्यादा है, तो इसलिए नहीं, बाबा ने कहा ग्रीड नहीं रखो, नीड को समझो। तो उन्हों को ये भी पता नहीं कि ये पुराना दुनिया बाकी कितना समय है। तुम बच्चे अब जाग रहे हो, औरों को जगाते हो, बाप आत्माओं को ही जगाते हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, शरीर समझते हो जैसे तुम सोए पड़े हो, अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो। आत्मा पतित है, शरीर भी पतित मिलता है, तो आत्मा पावन तो शरीर भी पावन मिलता है। बाप समझाते हैं तुम ही इस दैवी घराने के थे, ये भी बहुत नशा का बात है, तुम भी दैवी घराना के थे, दैवी घराना में जाने के लिए अभी तुम ट्यूशन ले रहे हो, तो कितना सहज बात है ना। ऐसा बेहद के बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे, क्यों नहीं याद, तो और किसको याद करेंगे, मिलेगा क्या। दो चार प्रश्न हम अपने को पूछेंगे तो दुनिया से हमारा कट ऑफ हो जाएगा। सुबह उठकर की भी बाबा को याद करो, बाबा आपकी तो कमाल है, कमाल है, गुड मॉर्निंग तो करेंगे, तो हम आपको कितना ऊंच, तो हमको कितना ऊंच देवी देवता बना करके फिर निर्वाण धाम में बैठ जाते हो आप। कोई तमन्ना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं, तो इतना ऊंच तो कोई बना ना सके संसार में, आप कितना सहज कर बतलाते हो। बाप कहते हैं जितना टाइम मिले काम काज करते हुए भी बाप को याद कर सकते हो, इसलिए तो याद ही तुम्हारा बेड़ा पार करने वाली है, अर्थात कलियुग से उस पर शिवालय में जाने वाली है। शिवालय को भी याद करना, बाबा को याद करो, घर को याद करो, और नया दुनिया में जाने वाले हो, नया दुनिया को भी याद करो। शिव बाबा का स्थापना किया हुआ स्वर्ग, तो दोनों की याद आती है ना। तो शिव बाबा को याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो यो पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, नई दुनिया के लिए बाप भी नई दुनिया स्थापन करने आते हैं। बाप आते हैं नई दुनिया स्थापन करने, जरूर बाप आकर कोई तो कर्तव्य करेगा ना। तो हम इतना भाग्यशाली आत्मा है, हम अपने परम पिता परमात्मा का एट्रीब्यूट हम जानते हैं, कर्तव्य जानते हैं। वो कितना अपने को छिपा करके बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम देखते भी हो मैं पाठ बजा रहा हूँ ड्रामा प्लान अनुसार, तुम देखते भी हो, जो मानते हैं समझते हैं तो वो तो देखते ही रहते हैं बाबा का काम, बाबा कैसा। तो बाबा कितना निष्काम सेवा करते रहते हैं। तुम बच्चे को 5000 वर्षों पहले भली तो याद की यात्रा और आदि मध्य अंत का राज मैं बताता हूँ। मेरा पढ़ाई तो कोई कठिन कुछ भी नहीं, तो ये 5000 वर्षों वाली याद की यात्रा और आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। तुम जानते हो हर 5000 वर्षों के बाद बाबा हमारा सम्मुख आएंगे, इंद्र सभा बनाएंगे, हमको बिठाएंगे, एक एक करके बाबा ने समझाएंगे। आत्मा ही बोलती है, शरीर नहीं बोलेगा। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, आत्मा को ही प्योर बनना है, आत्मा को एक बार ही प्योर होना है इस अंतिम समय में। बाकी तो तुम बाबा ने कहा सत्ययुग और त्रेता में तो तुम पिकनिक में रहेंगे, कोई चिंता नहीं, कोई
कारोबार नहीं, तो जमा हुआ धन खाते रहेंगे। तो बाप कहते हैं एक ही बार तुम्हें प्योर होना है। बाप कहते हैं मैंने अनेक बार तुमको पराया और भी पराऊंगा भी। तो ऐसे कोई सन्यासी तो हो ना सके। बाप ही कहते बच्चे मैं ड्रामा के प्लान अनुसार पराने आया हूँ, फिर 5000 वर्षों बाद ऐसे ही आकर पराऊंगा। देखो बाबा कभी हमको छोड़ा नहीं, हम बाबा को छोड़ देते हैं। कभी नाफरमान बरदार बन जाता है, कभी क्या हो जाता, कभी क्या हो जाता। तो जैसे कल्पों पहले तुमको परा करके राजधानी स्थापन की थी ना, तो अनेक बार तुमको परा करके राजा स्थापन की है। ये कितनी वंडरफुल बात बाबा समझाते रहते हैं। श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है श्रीमत बच्चों के लिए, और बाबा कहते हैं श्रीमत कितना श्रेष्ठ है। श्रीमत से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो बहुत बहुत बड़ा मर्तबा है। कोई को बड़ा लॉटरी मिलती है तो माथा एकदम खराब हो जाता है, क्या करे क्या ना करे, पागल हो जाता है। कोई चलते चलते होपलेस हो जाता है। ये ज्ञान मार्ग में चलते चलते तो बाबा को तो दिखाई नहीं देता। तो और एक पैर तो रखते हैं अज्ञानी में, एक पैर तो ज्ञान में चलने वाले चाहते हैं। तो इसीलिए तो अपना उन्नति नहीं दिखाई देता, तो इसीलिए तो होपलेस हो जाता है, आशाहीन हो जाते हैं। तो हम पढ़ नहीं सकते, हम विश्व के मालिक कैसे लेंगे, कैसे बनेंगे। तो एमनी संशय बुद्धि विनाशंतिर संकल्प चलते থাকে। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम इंद्र सभा में बैठे हो, तुम लक्ष्य रख लिया हो। बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख और खुशी की बात मेरे बच्चों से पूछो। बाबा कितना गर्व करते हैं अपने बच्चों के लिए। बाबा सारा दुनिया को कहते हैं अतीन्द्रिय सुख कार काছে আছে, আমার বাচ্চার কাছে আছে। তাদেরকে গিয়ে তাদের পার্সোনাল জীবনকে देखो, प्रैक्टिकल जीवन के देखो। तुम जाते हो सबको खुशी की बात सुनाने। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग करके गुलाम बने हो। गाते भी है ना, मैं गुलाम तेरा। गुलाम अपने को इतना नीच समझते आए हैं, तो समझते हैं अपने को नीच कहना, छोटा होकर के चलना अच्छा है। लेकिन बाबा कहते हैं नम्र रहो, फ्लेक्सिबल रहो, लेकिन छोटा नहीं। बाबा का बच्चा छोटा कैसे हो? छोटा तो नहीं हो ना, नीची पापी छल कपट, तो ऐसा कहना माना तो ये रावण जो तुम्हें सिखाया है, तो वही तुम जिगर से बात करते रहते हो। तो देखो बाप है कौन, उनको कोई जानते नहीं, तो उनको भी सिर्फ तुम जाना है। बाप कैसे आकर सबको बच्चा बच्चा कहो करके समझाते हैं। बाबा किसी का कोई पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये आत्मा और परमात्मा का मेला है, उनसे हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाकी गंगा स्नान आदि करने से कोई स्वर्ग की राजाई थोड़ी ही मिलती है। तो गंगा स्नान तो बहुत बार किया ना, तो ये तो पानी का पानी सागर से आता है, परंतु ये बरसात कैसी पड़ती है, तो ये भी कुदरत कहेंगे ना। दुनिया में बाबा ने बहुत बार समझाया, साइंटिस्ट भी ये प्रूफ किया है, दुनिया में जितना पानी है, एक बूंद पानी कोई कम नहीं कर सकता, एक बूंद पानी कोई ज़्यादा नहीं कर सकता। तो हम भूगोल में पढ़े हैं 3 भाग जल 1 भाग স্থল। যতটুকু জল ছিল অনাদিতে, বাবা বলছে কি এটা অনাদি, শতযুগে যতটা ছিল ততটা এখনও আছে, রিসাইক্লিং হচ্ছে, বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে আর বর্ষা হয়ে নিচে আসছে। আর সেই জলকে আমরা কেউ গঙ্গা বলছি, কেউ যमुना, কেউ सरस्वती। वास्तव में उसका तो एक ही नाम है पानी, जल। तो बाबा कहते हैं इस समय बाप तुमको सब कुछ समझाते हैं, तो धारणा भी आत्मा ही करना है, ना शरीर। आत्मा करना है, आत्मा होकर के तो आत्मा में स्थित होंगे, तो देखेंगे आत्मा में धीरे 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 अज्ञानता डिलीट होगा, और जो ज्ञान
का बात है वो स्टोर होगा। तुम फील करते हो ना, बराबर बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया, क्या थे और क्या हो गए। अभी झूठ अच्छा लगता है? नहीं लगता है। कुकर्म अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो ये दैवी गुण जितना बाबा ने कहा, तो इसमें किसमें बहुत ज़्यादा है, किसमें मीडियम है। तो बाबा ने कहा दिव्य गुण बिना कोई आत्मा यहाँ आकर के बैठ ना सके, दिव्य गुण तो होगा ही होगा। तो अब बाप कहते हैं बच्चे अपने ऊपर रहम करो, दया करो निजेर ऊपर, केन कोई अवज्ञा ना करो। तो निजेरই ক্ষতি হয়ে যাবে, निजेर पाए कोराल मारा হয়ে যাবে। देह अभिमानी मत बनो, मुफ्त अपना पद कम कर देंगे। टीचर तो समझाते रहे थे ना, तो ये महावाक्य तो जितना हो सके उसको इज्जत करो, रिगार्ड करो। तुम जानते हो ना, बाप बेहद का टीचर है। दुनिया में कितनी ढेर भाषाई हैं, कोई भी चीज़ तो छपती है तो सब भाषाओं में छपनी चाहिए। कोई लिटरेचर छपाते हो तो सबको एक एक कॉपी भेज दो, एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भेज देनी चाहिए। खर्चे की बात नहीं, बाबा का भंडार है, बहुत भर जाएगा। बाबा ने कहा तो ऐसा अपने पास रख कर के क्या करेंगे पैसा। देखो हम बोल दिया उस दिन, आज भी दोहराते हैं बाबा का। तो ये अगरतला ओम निवास वाले, ओम निवास एत बहुत भावना निये सेवा करेছে, तो ये बात मत पूछिए। मैंने कैलकुलेट किया, अभी 4 लाख एक्सपेंस करे तारा सारा त्रिपुराबासीर जन्य कैलेंडार छापिয়েছে। शुधु बोलছে আপনাদের কত চাই, 500, 1000, 2000, कोनो 1 টাকা खर्चा नहीं। तो आज भी बाबा ने इसका उदाहरण दे दिया है। तो ये करना है तो भाई बहनों को, भाई बहन जो काल सेवाते যারা গেছেন সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন, সবাই ভালো সেবা করেছেন। তো এইভাবে যদি সকলে একটু একটু করে সময় বের করে সেবাতে যেতে পারেন। আমরা তো কোনো নিতে আসিনি, আমরা দিতে এসেছি, ভগবানের পরিচয় দিতে এসেছি। এবার কারো কথা একটু ঘোরানো ফিরানো হবে, কারো কথা একটু ভালো হবে, ওপর নিচ তো হতেই পারে, কিন্তু সবাই ভালো করেছেন, সকলকে ধন্যবাদ। तो बाबा कहते हैं ये बाबा का घर का चीज घर तो नहीं ले जाएंगे ना। अगर कुछ घर ले जाए तो परमात्मा का यज्ञ की चोरी हो जाए। तोबा तोबा, ऐसा बुद्धिशाल किसको ना हो, परमात्मा के यज्ञ की चोरी। तो उन जैसा महान पाप आत्मा कोई हो ना सके, कितना अधम गति हो जाती है। बाबा कहते हैं यह सब ड्रामा में है। तो शायद कोई आत्मा ने किया है चोरी, माना कुछ भी हो, कुछ भी हो, तुम राजाई करेंगे तो वो तुम्हारे सर्वेंट बनेंगे। तो बाबा ने कहा इस समय जो अधोगति होता है, যাদের মনে নেগেটিভ ভাবনা থাকে, যজ্ঞের জিনিস না বলে নিয়ে যায়, তো এখন বর্তমানে হয়তো তাদেরকে গণ্যমান্য দেখা হয়। তো আগামী দিনে বাবা বলছে তারা তোমাদের চাকর নকর হবে। ওই लेवल यदि तादेर ना थाके तो बाप कहते हैं ये सब ड्रामा में नोद है। तो तुम राजाई करेंगे और वो तुम्हारा सर्वेंट बनेंगे। सर्वेंट बिगड़ राजाई कैसे चलेगी। कल्प पहले भी ऐसे ही स्थापना हुई थी। अब बाबा कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो, श्रीमत पर चलो, दैवी गुण धारण करो। क्रोध करना दैवी गुण नहीं है बच्चे, तो वो आसुरी गुण हो जाता है। कोई क्रोध करे तो चुप कर देना चाहिए, रेस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। तो हर एक के चलन से समझ सकते हैं अवगुण तो सब में है। जब कोई क्रोध करते हैं उनकी शक्ल तांबे जैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, तो मुख से बम चलाते हैं तो अपना ही नुकसान कर देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। समझ होनी चाहिए मैं क्रोध क्यों करो। क्रोध करो तो क्रोध कर ले निजेर इंटरनल शारीरिक
তো অ্যাক্টিভিটি তো কত দরবদর হয়ে যায়। তো যারা মেডিকেল সায়েন্সকে জানে বোঝে তারা বলতে পারবে কত কিছু, একটু ইরিটেশন मुहूर्तेर मध्य अनेक किचुर तो डिस्टर्बेंस हो जाए। इसीलिए बाबा ने कहा तो समझ होना चाहिए। तो बाप कहते हैं जो पाप कर्म करते हो ये लिख दो, बाबा को बताने से माफ़ हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा। जन्म जन्मांतर से तुम विकार में जाने लगे हो ना, इस समय तुम पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना दंड हो जाएगा। पाप के आगे भूल की तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, किया और बताया नहीं तो और ही वृद्धि को प्राप्त करेंगे। तो बाप तो समझाएंगे कि अपने को नुकसान नहीं पहुँचाओ। तो बाप बच्चों की बुद्धि सालिम अर्थात अच्छी बनाने आए हैं, जानते हैं ये कैसा पद पाएंगे। वो भी एक और जन्मों की बात है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। कोई झट बाप को बतलाते हैं बाबा ये भूल हो गया, कितना फ्लेक्सिबल होकर के हमें चलना चाहिए। बाप खुश होते हैं, बाबा सावधान देते हैं, भगवान खुश हुआ और क्या चाहिए। हम तो दुनिया में लोगों को खुश करना चाहते हैं, तो ये ख्याल नहीं रखते भगवान नाराज हो जाता है। तो भगवान को खुश करने के लिए जो कुछ करो भगवान खुश है, सब कुछ खुश है। इसीलिए ऐसा नहीं लोगों को तच्छुतिच्छिल्य करो, ऐसा भी नहीं। तो ये तो बाप टीचर गुरु तीनों हैं, नहीं तो तीनों ही नाराज होंगे। ऐसा कर्म नहीं करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार 1 नंबर, श्रीमत पर चल, अपनी बुद्धि सालिम अर्थात अच्छी रखनी है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। क्रोध में आकर मुख से बम नहीं निकालना है। चुप रहना है। नंबर 2, दिल से एक बाप की महिमा करनी है। इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना है। बेहद का बैरागी और निर्मोही बनना है। आज का मुरली से बाप दादा द्वारा बच्चों के लिए वरदान है। याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव याद के आधार द्वारा
माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। कोई कैसे भी बात सामने आए, सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा आप संभालो, तो बात खत्म हो जाएगी। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। बाबा शब्द कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाते हैं। इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चेयरफुल। तो अनेके बोले जीवनेर चढ़ाई उतराई, आज भालो तो काल नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कहा यादेर आधारे मायार किचड़ थेके निजेके कमल पुष्प समान भाबले परेई बाबा शब्द मुख थेके बेरोलेई तो सदा चेयरफुल थाकते पारबे। এটা আজকের জন্য স্পেশাল বরদান। आज का स्लोगान पवित्रता की धारणा बा धर्म को जीवन में लाने वाली ही महान आत्मा है। पवित्रता की धारणा व धर्मों को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। इसी अंतर्गत बाबा ने कहा स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन और जो करा संस्कार हैं उसे चेंज करो। बंधन मुक्त बाद में बनेंगे, पहले अपने चलन को देखो, अपने संस्कार को चेंज करो। कौन संस्कारेर कारणे हमें पीछे रहे। बंधन डालने वाले अपना काम करे, आप अपना काम करो। उनके काम को देख करके घबराओ नहीं। जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं तो आप अपना फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ कि वो कैसे अपना कर्तव्य कर रहा है, आप भी करो। अपने को बंधन से मुक्ति की युक्ति रचो। ऐसा परिस्थिति जीवन में बहुत आते हैं। तो कोई बंधन मुक्त बनने के बजाय हाँ पित्तेश करते हैं, हाय हमारा ऐसा हो गया। तो इसीलिए बाबा ने कहा तो पहले अपने चलन को देखो, संस्कार को देखो और उससे गुण उठाओ। वो नेगेटिविटी है, देखो वो कैसे एक्टिव होकर के काम करते हैं, तो तुम भी करो। तुम्हारा पास शुद्धता है, शक्ति है, गुण है। तो